बीपल सही में if you wanna get things done, they won't let you. अमीर बनना लेकिन पता नहीं कैसे बनना कैसे The good thing is he follows hyphen. in education field, Nope. like creatively. I don't even know what is the trend of India. We keep our creativity away for client work. Have to learn to steal like an artist. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and Hello and welcome to the second episode of the Hyphen Podcast. I am Aniket, and today we are going to discuss about challenges in 3D and animation. And I am here with my amazing team of 3D artists and graphic designers who will share their insights. So let's start with the questions. What are the biggest challenges you have faced in the industry working as a graphic designer and 3D artist? So let's go with Mohit. Hello guys, I'm Mohit. So the biggest challenge I have faced right now or still facing or will be facing in the upcoming future is the feedbacks and the corrections and the iterations. As you can see, there are much. Like it's an endless loop. We just share the content that they have asked for and they ask for like iterations and everything, like the corrections and things. Like if you wanna get things done, they won't let you. And other than that, yeah, there are writer block and everything. But as a professional now, like working for 3 years and more, this is the biggest challenge I am still facing. So Abhishek, from a business perspective, The challenges would be to find clients. Would be one of the biggest challenge I would say, because ऐसे ढूंढने जाओ तो ये लोग मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडिया में बहुत कम मिलते हैं क्लाइंट्स. बाहर के लोग आर मच मोर ईगर टू पे फॉर द सर्विसेज दैट वी ऑफर. And I would say like 3D का is not easy and it's not even like क्या बोलते हैं cheap. It is like expensive thing. तो not a बजट कंस्ट्रेंट वगैरह और yeah. हाई एंड टेक्नोलॉजी सब थोड़ा सा Yeah, so because again it's a service business, so you need a lot of manpower, you need a lot of computation power. So वो सारी जगह पे invest करना पड़ता है बहुत, and that's why there are people like not going into this stuff, is because these are the things that are impacting people. तो वो लोग नहीं आना चाहते इस सेक्शन में. बट वही वाली बात है कि 3D is something that I would say कि लोग creatively अपने products को दिखा सकते हैं, and people can do whatever they want in the 3D out space, but in a real space when their product is ready you cannot like आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते. You are limited with a lot of things. तो I guess 3D is much better way to move forward. बट हाँ, लिमिटेशंस तो यही है कि क्लाइंट्स को मनाना. ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ एजुकेशंस वाला भी सेक्शन है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये कुछ होता है. तो वो भी एक कहती है. तो मैंने जब भी कॉल्स में बैठा हूँ तो मेरे को अक्सर उनको समझाना पड़ा है कि हाउ दिस थिंग वुड हेल्प देम in reaching more customer, how this thing is more creatively appealing and rather than going for a normal photo shoot. तो ये सारी challenges हैं मेरे as a business perspective, I would say. एनीवन राइट समथिंग. वो ये कि क्लाइंट का बजट और उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसे है अगर इंडिया में. हाँ. वही है. एंड ऑफ कोर्स ना, मैं क्लाइंट का भी अगर come up बोलूं with a reference and they say I want this and I will pay you this. this How do you guys think India and Indian 3D and animation industry compared to other countries? Let's go with Satyam. Okay, hi guys. मतलब मैं प्रीवियस क्वेश्चन में भी आई एड इट एंड दिस इज़ द सेम पॉइंट. मुझे लगता है इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इतने सारे लोग वांना बी 3D आर्टिस्ट और एनिमेटर्स बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे फाइवर, फ्रीलांसर एंड लाइक एवरीबडी इज़ अ फ्रीलांसर विद द जॉब दे आर डूइंग, और एवरीवन इज़ ट्राइंग टू डू इट फॉर चीपर. और वो चीपर के चक्कर में क्वालिटी सफ़र होती है. बट क्लाइंट्स, आई एम नॉट ब्लेमिंग द क्लाइंट्स. हो सकता है कुछ क्लाइंट्स के लिए वो अच्छा रहे,
but majority of the cheaper work is actually cheap and it's not like sellable. बट उसके वजह से पूरी मार्केट का कॉस्ट गिरा हुआ है, एवरीबडी हैज़ टू बो डाउन, और इस वजह से इंडिया का मार्केट इतना फ्रेजाइल एंड पीपल यूज टू कॉल इट चीप लेबर एंड hence the reason why all the bigger Marvel and DC movies and majority of cinematic VFX work is done in India, but इंडिया का खुद का प्रेजेंस अपने इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत गिरा हुआ है. टू एडिंग टू इट, वो मेजर जो काम है वो 3D वाला बहुत कम होता है इन इंडिया, जस्ट Yeah. बिकॉज वो बाहर ही होता है. उधर पे जो स्किल्ड वाला जो टैलेंट है दैट इज़ मच बेटर इन उडीनी एंड जो 3D वाले जो सेक्शन पे है, एंड उनके रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे हैव. यहाँ पे जो काम होता है वो मेजरली रोटो एंड दैट सॉर्ट ऑफ वर्क इज देयर. Yeah, एंड सैडली बट यही ट्रुथ है यहाँ मतलब का. अपन ने अभी VFX समिट अटेंड किया था, उसमें भी वो लोग बोल रहे थे मतलब अब ऐसा नहीं है. 5 साल 6 साल पुरानी बात है कि हम इंडिया में सिर्फ रोटो होता है. वो बता वहाँ पे वो लोग बता रहे थे डीना MPC बहुत सारी बड़ी कंपनियां वो लोग बट ये ये बता रहे बाहर थे की कंपनियां हैं जो यहाँ पे आई है. हाँ, पर Yes. इंडिया में वो लोग ऐसा नहीं कि इंडियन इस पर काम नहीं करवा रहे. एंड ही आल्सो एडेड कि भाई यहाँ पे उनको चीप लेबर मिल रहा है, दैट्स व्हाई दे मिल रहा है, ओपनड हाँ. देयर ब्रांचेस ओवर देयर. Yeah. उन्होंने एग्जांपल दिया वो विप्रो एंड ऑल द कंपनीज का कि यार या वो लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं एक्चुअली हम भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं. Makes sense. मतलब उसमें थोड़ा There's अच्छे से nothing बोला था. wrong in that. हाँ, Yeah, और क्या. because we wanna grow also. But Also. as you have seen recently, अपने यहाँ RRR and ब्रह्मास्त्र वगैरह भी मूवी जो आई है, उनका VFX अगर देखोगे it is top notch. Like you cannot, like if you are not an artist, you won't recognize that there's a difference Correct. in the Like visuals and all. there was Yeah. shot in RRR. बट स्टिल वो भाई शेर वाला. या भाई वो सीन बहुत बहुत रियलिस्टिक बना है. दीज आर लाइक ओरिजिनल आईपीज ना, दे हैव वर्कड ऑन इट. तो उनका डायरेक्टर का एक बहुत अच्छा सा विजन है उस पे. बट व्हेन यू सी कल की, तो उसका बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चीज़ें उठाई हुई हैं, दे हैव जस्ट सिंपली कॉपीड थिंग्स. Yeah, वही वाली but बात that too बात तो ये not on a very good scale. क्या कहते हैं काम भी उस क्या कहते हैं उन मूवीज पे भी डीनैग और MPC और हाँ. उन लोगों ने ही किया. या हाँ, good. और Good वो भी points. है कि 3D एनिमेशन और VFX को देखे, VFX तो चलो ग्रो हो रहा है, लेकिन 3D एनिमेशन को फिर भी अपन वो देखते हैं अगर इंडिया में बच्चों वाली एनिमेशन. अभी काफ़ी लोग बच्चों वाली एनिमेशन समझते हैं 3D एनिमेशन को. मतलब काफी सारे स्टूडियोज सिर्फ बैठ के वही कर रहे हैं. मोटू पतलू Correct. बनाना सबको. Correct, correct. करेक्ट, बट इट्स नॉट दैट इजी. अपन को लगता है क्योंकि अपन थोड़ा अलग टाइप का काम करते हैं जो कि थोड़ा प्रीमियम दिखता है, बट वो एनिमेशन करना वो सब करना इट्स नॉट इजी. Easy. बैठ के वो स्टाइलाइज्ड है ना, अलग लेवल का स्टाइलाइज्ड है. So let's get back to the question, Satyam. What's the 3D and animation industry compared to other countries in India? So, as I mentioned, India ka labor is a bit more cheaper on the financial end, and people are doing it for cheap, even if they are like having a full-time job. तो वो भी freelancer है, freelancer तो freelancer है ही. Then agencies and other brands are also trying to get in India because India is the content hub right now, and सब कुछ बहुत cheap में available है. And this is where the quality is suffering in India. मतलब हो सकता है कि वही काम बाहर वाले इंडिया से करवा रहे हो जो कि बहुत गुड लुकिंग है, बट सिंस इंडियन क्लाइंट जब इंडियंस को वो पैसे नहीं देते तो इंडियन आर्टिस्ट भी उस क्लाइंट को वैसा काम करके डिलीवर नहीं करता, एंड हेंस दिस होल सर्कल कीप्स ऑन लूपिंग, एंड इंडिया अभी भी मतलब And पीछे hence है. the hyphen. एंड हेंस द आईफोन. डेडलाइन इज आल्सो फैक्टर उसमें, क्योंकि मैंने देखा है इंडियंस की डेडलाइन बहुत वीक रहती है rather than बाहर की. दे गिव अ लॉट ऑफ Correct. टाइम बाहर के लोग, बस दे नो देयर स्टफ. भाई बहुत बोल रहा हूँ ना, दे नो हाउ 3D वर्क्स. यहाँ पे लोगों को इतना नॉलेज नहीं है, दैट्स They व्हाई are दे doing it थिंक. for a very long time now. हाँ वही. या तो वो नॉलेज आने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, जैसे जैसे लोग इसमें बढ़ते जाएंगे ना, करते जाएंगे तो वो थोड़ा नॉलेज भी लोगों को आता जाएगा कि भाई हाँ इस वीडियो को बनाने में इतना टाइम तो लगेगा ही भाई. एंड लाइक दे अंडरस्टैंड कि इसमें इतना खर्चा आएगा, दिस इज़ द ह्यूमन रिसोर्स, दिस इज़ द एफर्ट्स, दिस इज़ लाइक द हार्डवेयर डिवाइसेस, इतना इलेक्ट्रिसिटी बर्न होता है, इतना टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, तो इट्स वर्थ इट. बट यहाँ के लोगों को लगता है कि इट्स नॉट पॉसिबल. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अभी AI के आने से काफ़ी दिस इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो इम्पैक्टेड. तो आई थिंक देयर आर लिटिल मतलब- स्ट्राइक्स गोइंग ऑन.
But to be honest, in international market में आज भी quality work will always be put above the तो AI अपन work and देखते ही हैं। everything. Yeah. तो अपन देखते हैं So भाई। irrespective, जो काम handcrafted है, handmade है, with well good vision board and storyboard, you can differentiate it any day, anytime, and it is costly. Satyam, who is your favorite 3D artist? Because you are into graphic design. तो मैं नाम मत लेना भाई। Yeah, don't take our names. It will be. नहीं Cliche. मतलब of course Cliche. of course I love my team, but जो मैं जिससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, he's a young artist, he's younger than me, he's called Maxe Art. Everybody kind of knows him, and the type of work he does is very similar to the work I like contrast and sci-fi and ancient ruins and stuff, and blending into the future and the past. It's just I connect and relate with Yeah. it. So yeah, Max is my number one artist in the list. सही है. The good thing is he follows hyphen. He knows us. This is a good thing about the community ना, because जब Yeah. से अपन ने ज्वाइन करा था, if you remember, तो बहुत Yeah. सारे फॉरेन के ही लोग थे जो फॉलो करते थे अपन को. Correct. इंडिया में Correct. थोड़ा बाद में आया, 1-2 साल बाद ही था जब अपन थोड़ा बहुत Yeah. इंडिया में भी चले थे. Yeah. ठीक है, अगर if we are like thinking of favorite artist, तो सब लोग बता दो, सबका एक favorite artist तो होगा ही. मुझे अभी- लगता है कोई favorite artist ही नहीं है. मोहित बताएगा सबसे पहले कि उसका फेवरेट आर्टिस्ट कौन है. नहीं है भाई मेरा फेवरेट कोई भी. मतलब आई डोंट ऐसा फॉलो एनीवन दिस मच लाइक टू द कोर. अब मेरे साथ वैसे मतलब मेरे को ऐसा फेवरेट आर्टिस्ट तो नहीं है, बट या देयर आर टू मेनी आर्टिस्ट हु आर गुड, किसी का भी नाम ले पर लो. फॉलो भी करता है, लाइक बीपल एंड बीपल सही में. हाँ भाई, मतलब क्रिएटिवली इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी आर्ट स्टाइल, है ना. हाँ, मतलब वो- किसी का भी आई मतलब वो एक अलग थिंक creative है. बीपल इज गेटिंग ओल्डर और उसके साथ उसका आर्ट स्टाइल चेंज होता जा रहा है. जी- आई थिंक इज मोर हाँ. पॉलिटिकल नाउ. पहले वो इतना नहीं था. हाँ, वही. और डीजी भाई पर मैं काफ़ी पसंद है उसका आर्टवर्क. और कौन है, मुझे यार यूजर नेम याद नहीं है. सही बता. I know Abhishek का favorite artist कौन है. हाँ, सुजोर also. Suzor. नहीं, Yes. सुजान नहीं है सर. मेरा फेवरेट आर्टिस्ट. 5 बिल्डिंग और एक पीली मेरे लाइट. खत्म. फॉर मी मेरे आर्टिस्ट चेंज होते रहते हैं. समवन आई लुक अप टू. सो इफ यू रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग द टून वाला सेक्शन, तो मेरा डायरियस बाका आर्ट्स जो डायरियस है वो दैट वाज माय वन Yeah. ऑफ द फेवरेट गाइस. तो मैं उसको बहुत लुक अप करता था बिकॉज आई वांटेड टू लर्न हिज स्टाइल. अभी फिलहाल के लिए आई वांटेड टू लर्न द हुडिनी वाला सेक्शन. तो लास्ट के 6-7 महीने से मेरा फेवरेट आर्टिस्ट इज ऑलरेडी बीन शूट का मेजर आर्ट डायरेक्टर जो वो करता है, उनके मेजर सीन्स बनाता है. उसका कोर्स ले रखा है मैंने, नाम भूल गया मैं सुन वही मुझे नाम याद नहीं है, मतलब लिटरली काफ़ी लोग फॉलो करते हैं. This is the reality guys. आर्टिस्ट के नाम हाँ, याद नहीं रहते. याद नहीं रहता. सिर्फ आयरन मैन फेमस हो जाता है. यस. ठीक है. अगल की ब्रांड वैल्यू बनाओ जल्दी. Yes. Content. फिर मैं तो पसंद हुई, तो ठीक है. मेरा फेवरेट तो इयन यूबर्ट ही है स्टार्टिंग से ही. जब से Yeah, मैंने ब्लेंडर्स but yeah, man. उससे Free better of मैंने नहीं cost देखा. content, quality free of cost content. रियल फुटेज को और 3D को मिक्स करता है तो ना, मजा आ जाता है वो देख के. Next लेवल level. है भाई. हाँ. उनका तो Literally is doing it on Blender for free. और क्या ही बनाता है भाई वो, तो मतलब साल भर में एक वीडियो डालता है और उसमें मिलियन व्यूज आ जाते हैं. गुड. मेलोडी शिप. Ian yeah. Hubert. इयन यूबर्ट. Ian Hubert, okay. Hmm. Ian Yeah. Hubert Hubert is on another level. I think these ये guys वजह ना से भी है अभी उनके लिए मैटर नहीं करता आप their पैसे उससे बना रहे हो पैसे कि प्रोडक्शन कर- पाइपलाइंस. दे डोंट केयर अबाउट क्लाइंट्स. आई डोंट थिंक वो क्लाइंट वर्क करता भी होगा. उनके लिए बस वही है कि उनको जो दिखाना है वर्ल्ड को वो दिखा रहे हैं. तो वो वाली सेक्शन मुझे बहुत पसंद है. तो भाई अगर आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं तो भाई अपन उनको भूल गए भाई. टाइवन पार्क और Zayo. Korean artists. जायो एंड ऑल. Yes. मतलब वो लोग मुझे लग थोड़े रहा था कि अलग अनिकेत ये level पे हैं. बोलेगा. कोरियन हाँ, एंड वो मुझे तो चाइनीज ध्यान है, वही मैंने आर्टिस्ट. कहा ये- या ये लोग
थोड़े अलग लेवल पे, So बट many and मैं वही बोलूंगा ना, मेरे साथ- यूएस में अलग वेव ऑफ आर्टिस्ट हैं एंड कोरिया के अलग वेव ऑफ आर्टिस्ट हैं। आई थिंक Chinese इंडियंस को भी एक artist हैं। वैरायटी चाहिए, दैट फकिंग इंडियंस Yeah. यहाँ पर है। नहीं, मोस्ट ऑफ देम आर कोरियंस, जिसके बाद बात कर रहा है ना, Sir, ये लोग कोरियंस हैं। एंड मेरे को वो भी पसंद था, एंड्रू लेब्रॉफ। Andrew Lepro, Andrew Lepro. I हाँ। don't know where he is right now. सो अभी वो आर्ट वगैरह ज्यादा बनाता नहीं, बाकी इवन फेवरेट आर्टिस्ट बीच में अपना कॉरिडोर क्रू वगैरह भी काफी अच्छे कंटेंट वगैरह बना रहे थे, बट शायद Robot वाले। अब नहीं बना रहे वो लोग यार। ये मैंने काफी टाइम से कुछ देखा नहीं। I think वो वो स्पाइडरमैन वाला वीडियो जिसमें वो स्पाइडरमैन रोकता है ट्रेन को और उसके हाथ पैर, वो बहुत अमेजिंग था ये। या आई थिंक मेरा नहीं देखा मेजोरिटी जो हुआ है। आर्टिस्ट हैं जिनको जिन लोगों ने अपने आर्ट को मोनेटाइज कर दिया, दे आर ऑल बर्निंग आउट समवे और द अदर। अगर वो यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे हैं, पता नहीं एल्गोरिदम की वजह से सबकी क्रिएटिविटी थोड़ी सी बर्नट आउट हो गई है। इट्स जस्ट वियर्ड। हाँ, ज़्यादातर लोग क्या अभी बिजनेस पर्सपेक्टिव भी ज़्यादा सोच रहे हैं, तो Correct. वो लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अपना आर्ट वगैरह छोड़ के, तो वो ही है। आई वुड से, क्योंकि भाई एल्गोरिदम वांट्स यू टू बी देयर एंड बी कंसिस्टेंट ऑन अ डेली बेसिस। एक Daily आर्टिस्ट के लिए इट्स अ basis. फकिंग बाउंडिंग थिंग, वो नहीं कर सकता। इफ ही वांट टू टेल एंड एक्सप्रेस एन इमोशन विद इन हिज आर्ट, वो पॉसिबल ही नहीं है एक दिन में करके देना, वो रश्ड ही दिखेगा। डीजी वाइपर को आप अनिकेत तूने नाम लिया, बट आई कैन से कि उसके पास जब टाइम रहता है देन ही क्रिएट्स अ फकिंग बैंगर। हाँ। उसके पास टाइम नहीं रहता तो वो बस डाल देता है, डाल बिकॉज देता ही इज कंपीटिंग विद द एल्गोरिदम। तो मैं समराइज कर देता हूँ। करो प्लीज Go प्लीज। ahead. मतलब बेसिकली इंडिया में ज़्यादातर आउटसोर्सिंग काम है अपने यहाँ, हाँ है ना। अपन जितना भी काम कर रहे हैं सारा आउटसोर्स है बाहर का, हॉलीवुड का। इंडिया खुद का Correct. कुछ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव कंटेंट बना नहीं रहा है, वहाँ इंडिया लैग कर रहा है। बाकी आई डोंट थिंक कि इंडिया के आर्टिस्ट में या फिर जितने भी स्टूडियोज हैं कुछ कमी है, कहीं लैग कर रहे हैं, Yeah, है ना। correct. क्योंकि इंडिया आउटसोर्सिंग के काम तो सारा studios इंडिया में ही आ भी- रहा है, और अपन Yes. देखे भी तो मेजॉरिटी काम अपना यूएस में हो रहा है, चाइना में हो रहा होगा, कोरिया में अपन को पता है हो रहा है ना, जापान में होता है। तो उसके बाद आई गेस इंडिया ही एक कंट्री है जो बाकी जगह काम कर रही है। और अपन वहाँ पे भी गए थे वीएफएक्स समिट में, वहाँ पे वो बंदा बता रहा था कि ये सारी कंट्री छोड़ के जो साउथ अफ्रीका वाला और ये वाला पार्ट है, वो लोग पूरा काम इंडिया से करा है, हाँ पूरा काम। तो अपन शायद जो लैग कर रहे हैं बस एक ओरिजिनल कंटेंट पे है शायद, कि हाँ अपन ओरिजिनल कंटेंट नहीं बना रहे उस लेवल पे। बाकी तो आउटसोर्स तो अच्छा कर ही रहा है। सही बात है। This is a good business I idea. guess, उसमें मेरा एक पॉइंट यही रहेगा कि जो इंडिया के जो भी क्रिएटर्स हैं उन लोग को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता। इफ आई लाइक से कि राइटर्स को हु आर लाइक तवज्जो मतलब क्या इनोवेटर्स होता है भाई? जो बोलते हैं ना, हाँ तवज्जो तवज्जो मतलब इम्पोर्टेंस, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती कि उनके राइटर्स, उनके राइटिंग स्टाइल को। बिकॉज इफ़ यू सी ना कि उनके मेजर बजट जो हैं वो अगर मूवीज़ के पर्सपेक्टिव में देखें तो वो उनका एक्टर्स ले जाते हैं। वही तो- उसका भी मैंने को यही पता चला कि यार अपने यहाँ अपन 2-3 कंट्रीज में मूवीज चला रहे हैं, समझ वही रहे? वही हॉलीवुड वो भी एक 200 रीजन countries है। में, यस 100 कंट्रीज में मूवी चला रहे हैं, Yes. तो वो इतना चर्न आउट भी कर रहा है उस कंट्री से। अपन नहीं कर पाएंगे तो वो लोग इतना बजट डालते भी नहीं कि भाई वो लोग उतना बिजनेस निकाल ही नहीं पाएंगे, तो इतना बजट लगाएगा क्यों? बट आई थिंक ये कि वाला- अगर इफ दे आर केपेबल टू ब्रिंग आउट कूल लुकिंग गुड मूवीज, मतलब ग्लोबल लेवल पे risk- चलती हैं। risk लेने वाली देयर बात आर है, जमती है। देयर आर लाइक आईपीज जो बहुत फेमस है, जैसे कोरिया की वो पैरासाइट थी, उसको ऑस्कर मिला हाँ। था, वो माइंड ब्लोइंग वाली मूवी थी। वो ऐसा है नहीं कि वो यहाँ पे इंडिया में नहीं बन सकती थी, वो बस ऐसी मूवी थी, बिल्कुल। वो एकदम नॉर्मल सी ऐसे- मूवी थी। वो ऐसे फिर कितने- Just a house and a walk. स्टोरी लाइन और क्रिएटिव बेस पे चली गए। हाँ, और कल्चर वही। भी आ जाता है ना अपना। वही मैं बोल रहा हूँ, वो रिस्क लेने वाला कोई नहीं है। पीपल वांट टू मेक अ क्विक बक यहाँ पे। इंडिया में हम वो सालों से बना रहे हैं, उसका नाम क्राइम पेट्रोल है। ध्रुव कुछ कल्चर के बारे में बोल रहा था। वो कल्चर अपना डिफरेंट है, उनकी स्टोरीज अलग है, अपनी थोड़ी अपनी कल्चर के मतलब अंदर कुछ है। और इंडिया में जितने भी स्टोरीज बनती है वो थोड़ी कल्चर से रिलेटेड रहती है, मतलब हाँ, उसमें वही। इंड्यूस होता है वो कि मतलब ऐसा नहीं होता कि अपन कुछ पूरे एकदम
अलग बना रहे हैं Out of अगर the अपने box, हाँ। आउट ऑफ द अगर अपन कुछ सुपर हीरो मूवीज बना रहे हैं तो वो भी इसमें भी कल्चर टेक Cultural रहेगा क्योंकि take जो कि अच्छी रहेगा। चीज़ है मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करती है इस टाइप से तो वो चीज़ रहती है अपने बट एक चीज़ और भी है कि इंडिया में बाउंडेशन बहुत है कि लाइक यू कांट हर्ट इन इमोशन ऑफ एनीवन, लाइक यू हाँ वो कांट सोच मिक्स के चलना स्टफ। पड़ता है काफ़ी बहुत ज़्यादा सोच समझ के चीज़ें बनानी पड़ती है। कोई भी इतनी सारी कम्युनिटीज, इतने डाइवर्सिफाइड लोग रहते हैं यहाँ पे कि किससे क्या किसको हर्ट हो जाए यू नेवर नो। तो इट्स जस्ट ये सारी चीज़ें काल्पनिक है इसका बाकी दिक्कत है या यू हैव टू पुट Transfer डिस्क्लेमर देना पड़ता है भाई स्टार्टिंग में। तो थोड़ा सा इतना ओपन हैंडेड मार्केट नहीं है। और हाँ ऑफ कोर्स पैसे नहीं मिलते आर्टिस्ट को, तो आर्टिस्ट अच्छा चर्न आउट नहीं करता। समरी ऑफ द स्टोरी, दैट्स इट। और क्या Yes. जहाँ ज्यादा चीजें पैसे वहाँ connected तो जाएंगे। है पैसे से। Yeah. Yes. पैसे से सब connected लोग है। बोलते हैं कि भाई इन दिस फील्ड आपको पैसा ऐसा नहीं देखना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द आर्टिस्ट अगर खा ही नहीं पाएगा तो वो चीज़ करेगा ही नहीं ना। ट्रू। एक वक्त का खाना भी अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो ही विल फाइंड समथिंग जो एक वक्त का उसको खाना देगा, रादर देन डूइंग समथिंग दैट ही इज पैशनेट अबाउट। बट थोड़ा नेगेटिव बोल गया मैं, बट ऐसे ही है भाई। मतलब मैं बिजनेस जो है सो है। जो नहीं, है नहीं, सो है। of course। मतलब इफ यू अगर कोई भी आएगा इस इंडस्ट्री में तो उसको पूरा पूरा पता चल जाएगा कि लिटरली चीजें ऐसी चल रही हैं। तो मैंने पॉजिटिव बोला भाई बस कोई दिक्कत नहीं। लेट्स गेट बैक टू द थर्ड क्वेश्चन, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड डू यू थिंक इंडियंस आर गेटिंग प्रिपेयर्ड इन एजुकेशन फील्ड Nope. लाइक क्रिएटिवली? यार ऐसा तो मत बोला। No. ये किसी को बोलने की Literal, जरूरत We ही नहीं have an पड़ेगी। artist who went to an animation school. तो एनिमेशन guess, स्कूल नहीं guys. भाई। हमको अभी वो सिखा रहे थे, उनको 20 साल पहले सीख गए थे वो। जिनको सीखने की जरूरत भी नहीं है वो सिखा के बाहर निकाल देते हैं। सो मैं बताऊं उसका क्या है। मैं गया था इंस्टीट्यूट में, आधी फीस दी थी, आधी नहीं दी, ठीक है, ड्रॉप आती आउट नहीं भाई, मारा। तूने सिर्फ 10-1% बताने छोड़ी। की जरूरत नहीं है भाई। 10-1% एकदम, ये बताने की जरूरत नहीं है यार बात। बता चुके हैं ना अपन। हाँ, तो मैं गया था इसलिए मैं आंसर दे देता हूँ एजुकेशन सिस्टम का। मैं बताऊँ तो अच्छे टीचर्स नहीं है इंडिया के पास ये चीज़ सिखाने के लिए। तो अगर आप देखो तो जैसे जो लोग इसमें प्रोफेशनली काम कर रहे हैं ना, वो लोग थोड़ा बहुत अच्छा ठीक ठाक कमा लेते हैं। दे आर डूइंग प्रोजेक्ट्स दैट आर वर्थ टॉकिंग अबाउट। तो वाई डू दे वुड जॉइन द फील्ड ऑफ टीचिंग? they can do seminars of course, जो VFX summit में जो वो लोग कर रहे थे, and of course they were like people from marketing department of the big studios. वो लोग आर्टिस्ट नहीं थे। they would never call an artist in their on the stage क्योंकि वो उनके कच्चा चिट्टा खोल देगा। फालतू तो रहते हैं ना वहाँ पे। अपन गए तो वहाँ पे भी वो लोग दे रहे थे पूरा सेमिनार, बट जितना भी टेक्निकल टर्म्स था उसके लिए वो लिटरली स्टेज से बोल रहा था। VFX को पूछो जाके। Yes. तो मैं वही बोलूँगा कि खड़ा होकर आंसर दे रहा था। उसमें टीचर्स नहीं है, तो वो टीचर्स नहीं है तो वो अच्छे से सिखा नहीं पा रहे, अच्छे से सिखा नहीं पा रहे तो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो वो करना नहीं चाह रहे। तो इट्स लाइक जस्ट दैट। एक अच्छा टीचर एक अच्छा स्टूडेंट भी बना के दे देता है। मतलब वो कनेक्टेड है सब सारे उसमें। और वो वाली बात भी क्या है कि बात अगेन बोली है भाई क्या अभिषेक, बात तो बोल दी। कंटिन्यू। एंड एक और चीज़ है कि अगेन आई वुड से दिस इज़ अ समथिंग जो कि इसमें पैसा लगता है और ना स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट। आपको एक थोड़ा अच्छा खासा पीसी चाहिए और इंडिया में थोड़ा आई वुड से कि अभी भी जो गेमिंग इंडस्ट्री इट्स ऑन फोन, मोबाइल वाले पे लोग आज भी पीसी नहीं है लोगों के पास। तो वो वाला सेक्शन में भी अगर आप देखो तो इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर टू पीपल टू ब्रिंग इट इन। आई थिंक ये सब जो स्कूल्स के सेक्शन से हो जाना चाहिए। स्कूल में वैसे कोई ज्ञान नहीं देते, सब एकदम कचरा पढ़ाते हैं। मेरा भाई छोटा भाई है स्कूल में, उसमें ही सब वहाँ से ही they need to start inculcating new things into the students itself so that they can choose कि भाई हमको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। उनको एटलीस्ट सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस तो करवाना चाहिए सो दैट दे कैन थिंक कि भाई हाँ हम लोग यहाँ जा सकते हैं, हम लोग वहाँ जा सकते हैं। बेचारा बच्चा वही घिसा पिटा जो मैंने पढ़ा, जो सत्यम के पापा ने मेरे पापा ने पढ़ा, वही वो अभी भी वही पढ़ रहे। मैं भी वही पढ़ के आया, अभी आगे के बच्चे वही पढ़ेंगे। कहाँ से ज्ञान, कहाँ से कल्याण होगा भाई? ऐसा नहीं चलता। आई थिंक दिस सिचुएशन इज डिग्रेडिंग। अभी तो और नीचे जा रहा है, बिकॉज जितना हमें पता था उनको तो शायद वो भी नहीं पता, भी नहीं बिकॉज दे पता आर मोर इनटू फोन्स एंड ऑल, तो वो उतना एक्सप्लोर भी नहीं कर रहे। तो बस उनकी हालत और खराब होती जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। वो थोड़ा सब्जेक्टिव है। चूतिया Yeah. बच्चे चूतिया ही है। मतलब पर जो
ये कट नहीं करेंगे, ये कट नहीं करेंगे। ये नहीं करेंगे। पर लिटरली जिन बच्चों को थोड़ा समझ में आ रहा है ना कि भाई हमें कुछ करना है, तो वो लोग कर रहे हैं। वो लोग लिटरली 17-18 साल के हैं, बट वो लोग अपने हिसाब से पर यही तो बात है, चीजें कर रहे मैं हैं। वही बोल रहा हूँ, But वो उसमें उनको मेहनत करनी पड़ रही है, ढूंढना पड़ रहा है, ढूंढना समझ पड़ रहा रहा है, है? करना पड़ रहा है। हाँ ये सामने से मतलब जो एजुकेशनल के वो जो बोलते हैं कि भाई हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, हम लोग लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, वो घंटा आगे नहीं बढ़ा रहे, तो फीस खा के बस बैठे हुए अपनी जेब में बैठे हुए मर्सिडीज हैं। में घूमने के लिए वो कर रहे हैं ये वाला काम। मतलब They don't give a damn fuck about the future of the- टॉपिक्स बनाते हैं 5 एकदम वो करने के लिए। हम आपको रिगिंग सिखाएंगे, हम आपको 3D मॉडलिंग सिखाएंगे, एनिमेशन सिखाएंगे। तो रिगिंग में उनको बनाना सिखाते हैं, लो भाई यहाँ से यहाँ तक फोन बनाते हैं, सीख गए तुम रिग। रिगिंग सीख गए। एनिमेशन में तुम एक की फ्रेम 1 पे ला रहा था और आखिरी की फ्रेम 30 फ्रेम पे ला रहा था, बन गया एनिमेशन। बन गया एनिमेशन। ये आगे तुम देख लो भाई। वो तो ये वाला बाउंसिंग scene बोर्ड है। भी नहीं सिखाते एनिमेशन क्लास में। मतलब मेजॉरिटी यही है कि एजुकेशन सिस्टम का, कि वहाँ पे वो लोग आपको बेसिक सिर्फ इंट्रोड्यूस करा देंगे सॉफ्टवेयर से, Yes. थोड़ा बहुत चीज़ें कैसे होती है मतलब वो दिक्कत करवा भी देंगे। ऐसी है कि जो स्टूडियोज हैं उनको अलग से क्लासेस देनी पड़ रही है ऑलरेडी टॉट आर्टिस्ट को, जो जिसको चीज़ें करनी आती है, फिर भी उनको सिखाना पड़ रहा है कि भाई काम कैसे होता है, तो ये तो बहुत गलत बात है। अ पर्सन शुड बी रेडी टू टेक इन अ प्रोजेक्ट, एकदम सीधा अंदर। तो मतलब बट ये चीज़ से मैं बोल रहा हूँ कि अब सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने एनिमेशन 3D की साइड हार नहीं बट ठीक है, वो तो ग्रूम तो करना ही पड़ता है किसी भी नए बंदे को, या फिर हाँ, जो भी नया मतलब आप employee अपने आएगा। कंपनी के वैल्यू But सिखाओगे, he should ये know समझ में his आ रहा है stuff. कि अपनी कंपनी सुबह 10 बजे से 9 बजे तक लगती है, आपको इतना इतना रहना है, ऐसा ऐसा करना है, वो सब आप सिखाओगे। बट ये थोड़ी ना सिखाओगे भाई काम क्या करना है तेरे को। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, द वर्क ही हैज टू डू इन द कंपनी, वो तो उनको बताना ही पड़ेगा, बट ही टास्क असाइन करना, यस यस, मैं वही बोल रहा हूँ। यस, So, मेरे को ऐसा नहीं education चाहिए से कि याद भाई आना मैं उसके साथ बैठ के उसका काम भी करवा रहा हूँ कि भाई देख ऐसे इसको की फ्रेम को ऐसे लगाते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए ना। दिस शुड नॉट बी दैट। हाँ करेक्ट। इंसान अगर किसी जॉब पे जा रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ये बताना पड़े कि यार देयर इज अ बेटर वे टू डू दिस, कि या हाँ, बिकॉज ये यू आर प्रोफेशनल, वो फ्रेशर हाँ। होगा। यस, I would love to hear Aniket's take on this because we got a new teammate, Dhruv. Yeah. उसका उसने टेक कैसा अनिकेत किया देगा, जब वो नया आया था? उसका टेक अनिकेत Bro. देगा क्योंकि अनिकेत वाज वर्किंग विद हिम। Yeah. नया बहुत सिखाना पड़ा। बता तू अभी भी रील डालेगा? काट ले रही गलत है ये, नहीं गलत। नहीं, ध्रुव काफ़ी कुछ पहले से मतलब लर्न करके आया था खुद ही से, उसने चीज़ें सीखी हुई थी, तो उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, मतलब काफ़ी कुछ उसको पहले से आता था। और बेसिकली ध्रुव लिटरली वो चीज़ें सीख के आया था जो हम लोग करते हैं, इन्वायरमेंट क्रिएशन और समथिंग लाइक दैट, तो वो सारी चीज़ें आती थी। थोड़ा सा क्रिएटिवली चीज़ें समझानी पड़ी, बट ओवरऑल सॉफ्टवेयर वाइज तो आता था उसको चीज़ें। लग रहा था कि हाँ एक 1.5 साल भाई ने चलाया Time दिया। हाँ टाइम चीज़ें दिया। कर रहा है। आई वुड लाइक टू ऐड कि तारीफ है डाल देना कि लाइक आई थिंक ही इज़ वेरी यंग ऑल्सो एज अ 3D आर्टिस्ट, तो वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस टेबल पे लेके आया था, एंड ओवर द स्पैन ऑफ नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ही विल बी जस्ट किलिंग इट। सो ध्रुव तुम्हारा टेक क्या है इंडियन एजुकेशन ऑन क्रिएटिव थिंग्स? तुम्हें कुछ You think ऐसा मैं तो सिखाते तो कुछ नहीं है ये। बचपन से मेरा वही था। प्रिपेयर नहीं किया जाता? हाँ, कुछ प्रिपेयर नहीं करवाते। मेरा तो बचपन से वही था कि मुझे आर्ट के अंदर वो मतलब इंटरेस्ट है काफ़ी। Yeah. बचपन से मैं चलो ड्राइंग ही एक करता स्केच था। बना के दिखाना मेरा। बनाऊंगा, मेरा अकाउंट चेक करना, उस पे सारे स्केच बना रखे हैं मैंने। करता है कहता है भाई मेरे को नहीं आता। He मैं can, तो 3D सा- Aniket चारों can say पांचों the तो line नहीं Suzar wali, I still can draw. I still can't draw भाई। मेरे को मैं जितना आर्टिस्ट हूँ सिर्फ 3D सॉफ्टवेयर पे हूँ। उसके बाद भाई सिर्फ डायग्राम बना पाता मैं। वो भी टीम में वही है कि अगर मैं 3D में नहीं रहा तो लेकिन आर्ट में तो हमेशा रहूंगा, ऐसा। Nice. तो मैं 3D के बारे में थोड़ा सा भी बताया था क्या स्कूल में? ऐसा तुम्हें कहीं पता भी चला था कि स्कूल टाइम में कि 3D जैसा भी नहीं। कुछ होता है?
नहीं ना, अभी बता नहीं चला. दिस शुड बी डन. लाइक कुछ तो बताना चाहिए कि यार ऐसा भी कुछ होता है. वही तो भाई, हमें वो ध्रुव को बुलाओ एंड वो देगा आई एम वर्किंग इन हाइफन और कुछ अपने स्कूल में और क्या? बुलाना चाहिए, या सत्यम मेरे को उसके को- स्कूल में बुलाना चाहिए. लिटरली भाई पीसीएम कॉमर्स बायोलॉजी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रहता. लाइक यू डोंट इवन नो, बचपन से मोल्ड किया जाता है और वो. नहीं अपने को It थोड़ा सा doesn't ये भी exist. दिखाया जाता है ना कि आर्ट लेगा क्या, हाँ. आर्ट कौन लेता है. अरे वो आर्ट अलग होता भाई. हाँ अलग समझ रहा है. अगर वहाँ पे कुछ और मुझे तो पता भी नहीं होगा आर्ट क्या होता है, बट अगर वो वहाँ आर्ट अलग ही art होता है. पढ़ा भी रहे That मजे is की बात तो into ये हमें वो भी नहीं literature. बताया. लिटरेचर लिया था वो. ह्यूमैनिटीज. मैंने मजे लिया की- था वो. क्या आर्ट. हाँ मैंने ट्राई किया था क्या क्या कर सकता हूँ मैं. तो मैं पहले आर्ट्स लिया, फिर उसमें वो देखा कि क्या क्या होता है. फिर 11th में पूरी आर्ट्स करी, फिर मैंने 12th में पीसी भी करी. कर सकते हैं अपन कि इंडिया में अभी टाइम लगेगा एजुकेशन सिस्टम सुधरने में या ओवरऑल. और इस सेक्शन में तो लगेगा. आई थिंक इंडिया इज वर्किंग टुवर्ड्स ब्रिंगिंग मोर वेब डेवलपर्स एंड डेवलपमेंट सेक्शन में जाना. लोगों को इंटरेस्ट भी उसी में है बिकॉज देयर इज अंधा पैसा. डिजाइनिंग जब पार्ट में तक इंडिया अभी यस बैंक कर रहा है. बिकॉज पैसा नहीं है ना इधर. इंडिया डिजाइनिंग में बिल्कुल पैसा नहीं है. तो जब तक पैसा नहीं डेवलपमेंट आएगा, में पैसा है. डेवलपमेंट में बहुत पैसा है. डेवलपमेंट में तो जब तक वो वैसा मतलब स्केलिंग थोड़ी बहुत भी बैलेंस्ड आउट नहीं होगी ना, तब तक नहीं आएंगे लोग. वही मतलब अपने हम बेसिकली ज़्यादा थ्योरी पे फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा सा या कम है. कब मैंने काफी लोगों को देखा है कि सब बोलते हैं मुझे अमीर बनना है, लेकिन पता नहीं कैसे बनना कैसे बनना है. है. अमीर सही बात कैसे है. बनना, और तो उनको पता ही ये नहीं भी तो नहीं कैसे पता बनोगे. कि अमीर बन के करना क्या. करेक्ट. पहले कोई एक चीज ढूंढो, उसमें करो, फिर जाके तुम कुछ कर पाओगे. बस ये अमीर बनना है. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में कि इंटरनेशनल मार्केट में सब लोग स्पेशलिस्ट होते हैं एंड दे स्पेसिफिकली मास्टर देयर वन एंड ओनली स्किल. बट इंडिया में पैसे कमाने के चक्कर में एवरीबडी इज़ अ जनरलिस्ट. सो ग्राफिक डिज़ाइनर वीडियो एडिटिंग भी करता है, वीडियो एडिटर ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करता है, और ग्राफिक डिज़ाइनर 3D भी सीख रहा है. सो दैट इज़ जस्ट But I बैड think थिंग. this is somewhere good also. हाँ, this is In a way- good and that's in a way, but It's a phase. जो It's स्पेशलिस्ट a होता है वो he makes a lot more than a generalist. lot more than a generalist. Like हाँ. नहीं yeah. सिर्फ इंडिया में नहीं है, आई गेस मैंने जापान का भी सुना है कि वहाँ पे भी स्पेशलिस्ट नहीं होते ज़्यादा. हाँ. वहाँ पे भी लोग नहीं, ऑलमोस्ट सबके what I सब think it's जर्नलिस्ट ही a होते हैं. phase. ये आता है और फिर अपने आप अपना एक स्ट्रीम निकलती है, then we grow in that way too. वो एक जापान point में जो होता है उसका मेनली भी. एनिमे इंडस्ट्री है ना, वहाँ पे भी जो स्टूडियोज वहाँ पे बोलते हैं, बोला जाता है कि ज़्यादातर लोग जर्नलिस्ट ही होते हैं. मतलब वहाँ पे सबको सब कुछ करना होता है, कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं होता. वहाँ तो खैर पता लोगों नहीं की कितनी कमी सच्ची है है तो बात. करना ही पड़े. हाँ वो भी है. वहाँ पे लोगों की भी हाँ कम. सही बात है. हाँ. तो वही. ठीक है. Let's get back to the fourth question. How do you approach balancing creativity with client demands? We don't actually. We keep our creativity away for client work. उसको हम देखते भी नहीं है, ना बुलाते हैं, ना ऐसे दूर से शुशु कर देते, चल भी निकल. ऐसा नहीं है. नहीं सीरियसली आंसर दो the भाई. client Seriously आंसर दो इस चीज़ asks का. for it, like unless he wants our feedback on this, or our take on this, then only we'll answer. Yeah. Like does client come in and say, how can we do this and what are the different ways we can do this? Yes. Yeah, what are the other ways, and how would you like to To do approach this. to this concept or things? So Approach this Then concept. Yes. we'll add our Hmm. creativity and I have a take guys on this. Sorry. Yeah. So I'll just quickly break it down. मैं पॉइंट वाइज पॉइंट समझाता हूँ तो थोड़ा इजी रहेगा. बेसिकली 3 टाइप के क्लाइंट्स होते हैं. एक क्लाइंट जिसको कुछ नहीं पता होता, उसको क्या चाहिए वो आपके ऊपर सब छोड़ देता है. दूसरे टाइप का क्लाइंट होता है जिसको थोड़ा बहुत पता होता है, वो थोड़ी बहुत आपकी हेल्प चाहता है. और तीसरा क्लाइंट होता है जिसको खुद भी कुछ नहीं पता रहता, बट जो हम करके देते हैं उसको वो भी पसंद नहीं आता है. एंड जो लास्ट वाला क्लाइंट है, दैट इज़ व्हाट यू विल गेट इन इंडिया मोस्टली. बट हाँ, दीज आर द 3 मेजर क्लासिफिकेशंस. बहुत कम क्लाइंट्स होते हैं, दिस इज़ द 4th कैटेगरी, जो जिनको एग्जैक्टली पता रहता है कि हमें ये ऐसी चीज़ चाहिए और ऐसा करके दे दो, एंड वी जस्ट गिव इट एंड डिलीवर इट. उसमें टाइम भी कम वेस्ट होता है, एंड दे आर ऑलवेज लाइक दे कम विद द डेडलाइन, बिकॉज उनको पता है इसको बनाने में टाइम कितना लगेगा, एंड दे ऑलवेज कम विद द बजट. तो दिक्कत ही नहीं होती है. बेसिकली थोड़ा कम्युनिकेशन सही रखना पड़ता है क्लाइंट से कि करेक्ट. अपन स्टोरी वाइज से चल रहा है. अगर स्टोरी बोर्ड के हिसाब से चल रहे हैं तो स्टोरी बोर्ड के हिसाब से चलते हैं. Yes.
I can see the pain. अगर वो नहीं हो पा रहा है तो ठीक है. Communication is the key, I हाँ. guess. Cheers for Mohit. The most challenging animation you have created and how did you tackle it? एनिमेशन, मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि एनिमेशन करना मुश्किल नहीं होता. एनिमेशन को करना किस तरीके से वो मतलब मुश्किल होगा. जैसे कि अगर किसी आपको वॉक साइकिल बनानी है तो आपको जब पैर रखना है ज़मीन पे वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रिपीट होगा. अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना इन द सेंस कि आपको फिगर आउट करना आ गया कि वो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप 10 मिनट में वो कर दोगे. लेकिन वो सोचने के लिए कि वो डिस्टेंस कितना बनेगा और आप उसको अपने सॉफ्टवेयर में या फिर कैसे करना है अप्रोच करोगे, वो करने में आपको बहुत समय लगेगा. लाइक यू वोंट बी डूइंग इट लाइक बैठे और हो गया. आपको वो 20 बार करके देखना पड़ेगा. देन ओनली इट विल बी लाइक Think, yeah, मतलब if you are a fresher or a beginner तो ये पहली बार में तो आप कभी करेक्ट नहीं करने वालोगे. It's like a thing you will evolve over time. And लाइक you, एवरी पर I guess एनिमेशन. हर प्रोजेक्ट पे आपको डिफिकल्टी आएगी ही सेम काम कर, भले आप सेम काम क्यों नहीं कर रहे, थोड़ी बहुत. अभिषेक. डिफिकल्टी तो खैर हमेशा ही रहेगी. बाकी एनिमेशन में तो खैर आपको पहले मन में बनाना पड़ेगा वो एनिमेशन, फिर आप वो फिजिकली कर पाओगे. बाकी अगर नहीं बना Half पाए of तो the फिर work नहीं is बनेगा. done it there. मैं बोल रहा हूँ if you guys haven't watched the episode 1 of this podcast, इसमें हम लोग ने पहले ही बोला था कि ये इंडस्ट्री बहुत चैलेंजिंग है, इसमें कभी भी एक दिन रिपीट नहीं होता है. देयर इज ऑलवेज अ न्यू थिंग lying for you, a new challenge ready for you to kill you in another any way or form. तो वो रेडी रहता है आपके लिए इवन हर घंटे में और एक हर नए दिन पे. तो इट्स एन इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री. करना है कुछ अपना, कुछ तेजस्वी सा काम किया हो. bro, था वो जिसमें- मेरा तेजस्वी वाला जो पहला मेरा क्लाइंट वर्क था. क्या वो आपने किया था? मैंने किया था. खींची बहस की स्टार्ट हुई थी, वो स्टार्ट हुआ था वहाँ से. वहाँ ध्रुव को पता चला था कि इन्वायरमेंट क्लाइंट वर्क. डिज़ाइन भी कुछ डिफिकल्ट सा टास्क होता है. ये भी एक कला है. ये भी एक कला है. I would say मेरा was the interesting project was वो अल्ट्रावायलेट वाला जो 3D वाला इफेक्ट था इन अ रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में, वो वाला करना. वो मैंने और मोहित ने मिलके फिगर आउट करा था. वो वाला सेक्शन बहुत मज़ा आया था करने में. दैट वाज अ लिटरल चैलेंज जो करके एकदम First time, yeah. First time, yes. And I think in Hyphen I would say every project that we have done now कुछ ना कुछ एक नए Figure out ही चैलेंज करनी पड़ती है basically चीज़. कुछ ना कुछ नया ही किया है उसमें. We haven't repeated the same thing over and over. कुछ ना कुछ we always try something new. सत्यम, तू Yeah. बता कि टाइट टाइमलाइन कैसे टैकल करते? Guys, for this, I ऑल्सो would विद say द बजट कंस्ट्रेंट. गूगली हो गया है तो ठीक है. हाँ, सो टाइमलाइन और बजट ये दो एक ऐसी चीज़ है जो इट्स लाइक ब्रेड एंड बटर. दोनों एक दूसरे के बिना अच्छे नहीं लगते, पर एक ज़्यादा हो जाता है तो भी अच्छे नहीं लगते. एंड जब टाइमलाइन अच्छी रहती है, बजट कम होता है तो मज़ा नहीं आता. बजट अच्छा रहता है, टाइमलाइन छोटी रहती है तो भी मज़ा नहीं आता. सो इट्स लाइक यू हैव टू हैव अ स्वीट स्पॉट जो फॉर श्योर क्लाइंट्स को नहीं पता होता, उसे आपको पता होता है. एंड अगर बजट कम होता है तो आपका ऑटोमेटिकली मन मर जाता है काम करने का एंड योर वर्क सफ़र. सो इट्स बेटर, आई वुड एडवाइज यू एज एन आर्टिस्ट, आप पहले ही मना कर दो इफ़ इट्स नॉट लाइक सूटेबल फॉर योर नीड्स एंड वांट्स. एंड इट शुड बी अ विन विन सिनेरियो. बट अगर इट्स एट द स्वीट स्पॉट तो आप वो काम लो एंड डिलीवर इट. थोड़ा सा ओवर डिलीवर करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ओवर डिलीवरिंग इज़ ऑलवेज गुड बिकॉज इट गिव्स यू अ माउथ पब्लिसिटी एंड लाइक वर्ड ऑफ रेफरल. तो ऑलवेज ट्राई टू ओवर डिलीवर. बट अगर बजट एक्सट्रीमली कॉन्स्ट्रेन है और टाइमलाइन भी बहुत छोटी है तो दिस इज़ लाइक द बिगेस्ट रेड फ्लैग. टाइम टू से नो. एंड यू हैव टू से नो. यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड. नहीं हो पाएगा भैया, माफ़ करिए. किसी का समय वेस्ट नहीं होना चाहिए ना, हमारा ना आपका भी समय बहुत कीमती है. वो है दरवाज़ा. ऐसे ना ये करिए कि आप आज हमें बता रहे कॉन्सेप्ट दोपहर के 4 बजे और आप चाहते हैं कि मैं आपको कल दे दूं वीडियो, जो कि पॉसिबल नहीं है. व्हाट्स द मोस्ट अंडररेटेड स्किल फॉर 3D आर्टिस्ट और ग्राफिक डिजाइनर? मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन और स्टोरी टेलिंग, ये 2 अंडररेटेड स्किल हैं.
अगर स्टोरी टेलिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे अपने आर्ट वर्क्स में किसमें, तो वो निखर के नहीं आएगा वो काम अपना। थोड़ा और और elaborate करो। कम्युनिकेशन में वो ये कि अगर क्लाइंट को समझा ही नहीं पाओगे तुम क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे और ये कैसे बनेगा। जैसा मेरा भी एक रिसेंट आर्टवर्क था जिसपे मैंने एक स्टेयर्स थी और 2 कैरेक्टर्स थे उसमें एक लड़का और लड़की थे। उसमें मैंने ऐसे बताई स्टोरी टेलिंग कि कलर को यूज़ करके, वार्म कलर और एक कोल्ड जैसे ब्लू कलर। आफ्टर दैट सीइंग दैट आर्टवर्क व्हाट आई फील लाइक द कॉन्ट्रास्ट ऑफ लाइफ, लाइक अगर किसी की 2 शिफ्ट वाली जॉब है फॉर अ थिंग, तो एक बंदा जा रहा है एक बंदा आ रहा है, so this is the thing, like what are your takes, like क्या था उनको, मतलब बहुत सारा thought provoking artwork था वो for me। वो डिफरेंट पर्सन के लिए different डिफरेंट POVs, हाँ, yeah, like you can POVs, have so many हाँ, stories from a same हम्म, artwork और सबके अलग अलग emotions struck होंगे, like cold and warm, love and war, and like there's just too many options that you can take that artwork to, yeah, that was a बस good वही है artwork. कि स्टोरी टेलिंग ज़रूरी है। अगर तुम बिना आर्टवर्क को मूव करे भी स्टोरी बता पा रहे हो तो तुम जीत गए। अगर तुमने एक फ्रेम वैसा कर लिया तो या So I would like to take this moment to refer to this artwork, yeah, see, नहीं दिख रहा ढंग से। कोई बात नहीं, I We'll put it. we'll put it, so there is this this is the rainy environment and there is this moody lights and all, so like it's a depressing kind of moment for for some people, like some gets depressed over the like rainy things and all, but some gets cheerful also, so yeah। लड़के को बहुत बहुत पसंद सारा होता है रेनी सीजन। some people mostly I think कि cinematic aesthetics ये सारी चीज़ों से कुछ लोग brighten up हो जाता है, कुछ लोगों को cinematic is basically dull and negativity and dark energy feel, so I think उसमें इस artwork में specifically the one that Mohit made, इसमें there is a very good contrast of like new cherry blossom and a dull rainy season. Like it brightens up and takes you down as well, but it's like a perfect blend of both happy and sad. Sadness, some people will have sad emotions to it, some people will have happy emotions to it. It's the way you perceive it. So yeah, you should have contrast. Like for me, if I personally make an artwork, I want contrast. I need it to have that, the zeros and ones, the blacks and whites, it should have that feel. The extreme opposites. कुछ ना कुछ For किसी से me- क्लिक हो ही जाएगा. For me, there should be some storytelling or something going on, for it should create some spark in your mind, like it should make you think something different what you were thinking right now। अंडररेटेड डिस्कस सत्यम। टेकिंग गुड इंस्पिरेशन, ये मैं सबको बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, पीपल जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आप कितने भी टूल्स खरीद लो, कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर दो, कोई भी कोर्सेज खरीद लो, अगर आपको इंस्पिरेशन लेना ही नहीं आता तो देन यू वॉन्ट लाइक एवर विन एज एन आर्टिस्ट. यू हैव टू लर्न टू स्टील लाइक एन आर्टिस्ट. एंड आप किसी को देख के ही सीखते हो. सारे इनोवेशन हो चुके हैं, अब कभी नहीं होंगे फिर से, होना होंगे तो बहुत रेयरली होंगे, बट इट्स मोस्टली रिमिक्सेस. दिस वर्ल्ड इज़ फिल्ड विद रिमिक्स नाउ, सो यू नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड कि मैं किसको किसके काम से इंस्पायर हूँ, एंड देन आई क्रिएट समथिंग आउट ऑफ इट. To add on this, like after taking good inspiration or multiple inspirations, you have to visualize the thing here. Then And, it will be for your screen. Problem solving, I think, is really not talked about, because अगर आपको कोई problem solve करना आता है, then you will be able to make like more innovative things or more beautiful things or more things that are not being done or in the 3D space. प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ज़रूरी है, लिटरली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फंसोगे ही चीज़ों में, और आपका थोड़ा सा एप्टीट्यूड और रीजनिंग अच्छा होना चाहिए चीज़ के लिए. करेक्ट. अभिषेक, व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट अंडररेटेड? सबने बोल दिया लगभग, तो मेरे पास कोई ऐसा ऐड ऑन नहीं है, बट आई वुड से एक जैसे एज अ बिजनेस ओनर माई सेल्फ, तो मैं ये बोलूँगा, हाउ डू यू एन अंडररेटेड स्किल इज वुड बी कि हाउ डू यू कैपिटलाइज ऑन योर आर्ट वर्क, ऑन योर आर्ट. सो कम्युनिकेशन. not communication, but what do you think would be the best way to make money through your skill or your passion, or you can say something that you like to do on a daily basis? मेरे हिसाब से sad है तो part. मेरे हिसाब से कि मतलब स्टोरी टेलिंग एंड But I guess not the sad part, यार सत्यम, I would say कि it's a
for some people ना it's something magical. They would say कि भाई I like doing, मतलब मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे करने में मज़ा आता है. Some people के लिए थोड़ा different हो सकता है कि they would say कि हाँ भाई I love doing what I do on a daily basis. This gives me the kick to wake up in the morning. So ऑफ कोर्स लाइक स्किल Yeah. और आर्ट के बेसिस पे तो इट्स डेफिनेटली गुड. द सैड पार्ट इज कि आर्टिस्ट को नहीं पता उसको मोनेटाइज कैसे करना है. उसने ये सीखा आर्ट कैसे बनाना है, उसने ये नहीं सीखा कि उसको Yeah. बेचना कैसे है. yeah, that's why I would say वो- कि ये बहुत underrated skill हुआ एक artist का. या एंड आई थिंक उनकी गलती भी नहीं होती. दिस इज नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी या कप ऑफ टी कि आपको उसको बेचना भी आना चाहिए. Even though भाई if you know वो It can be Picasso. a good podcast topic, right? How to monetize. हाँ, we can actually Talk look into about it each this. us also. अपन research करके we can make an about Subscribe this. करो. And last question is, how do you feel design trends in India differ from global trends? सबसे पहले तो वो ये कि इसमें डिफरेंस होगा. अपने इंडियन स्टाइल में तो अपने इंडियन एस्थेटिक्स आ जाते हैं, अपने वाइब्रेंट कलर जो हम यूज़ करते हैं अपने आर्टवर्क्स में, और ग्लोबली तो वो फ्यूचरिस्टिक साइफाई स्टाइल उनका होता है. तो वो डिज़ाइन का कुछ मतलब थोड़ा डिफरेंस आ जाता है अपने यहाँ पर. Talking about design, I would say कि वेस्टर्न कल्चर थोड़ा मिनिमलिज्म को ज़्यादा वो लाइक प्रायोरिटाइज करता है, प्रमोट करता है. एंड इंडिया का कल्चर ही ऐसा है कि वो अपने कल्चर को छोड़ के बाकी सारे कल्चर को प्रमोट करता है, लाइक वट एवर गेट्स द मनी. तो इस चक्कर में अपना खुद का इंडिया का खुद का डिज़ाइन सेंस थोड़ा सा वीक है, बिकॉज इंडिया इज़ अ वाइब्रेंट कंट्री फिल्ड विद अ लॉट ऑफ कल्चर्स. हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हैं, कलर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, लाइक दिस इज सो मच कि सब कुछ एक प्लेट में व्हेन यू ब्रिंग इट्स अ वाइब्रेंट डिज़ाइन. इट्स नॉट समथिंग विच इज़ वेरी मिनिमल. उसको मिनिमल करके बेचना इज़ लाइक द डील, बट वो इंडियंस को नहीं आता है. सो या लाइक इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग जो वेस्टर्न कल्चर का है, आई थिंक इंडियन डिज़ाइन को थोड़ा मार्केट में अपन को सेल करना आना चाहिए. वी नीड टू I अंडरस्टैंड. disagree. मतलब मुझे लगता है कि एज अ इंडियन आर्टिस्ट आप करते हो, मतलब इंट्रोड्यूस चीज़ें एज अ कल्चर, अपना कल्चर या जो भी है जहाँ पे भी आप देखो. अगर आप मूवीज़ भी देखोगे या फिर पर्टिकुलर कहीं वर्ल्ड में अगर इंडिया का कोई डिज़ाइन जा रहा है या फिर कोई आर्ट है, तो उसमें आप पर्टिकुलर देखो कि वो वहाँ पे है Indian- कल्चर. I'm saying कि वो अगेंस्ट है. I'm saying कि इंडियन कल्चर को थोड़ा कम लोग लेते हैं, बल्कि दैट इज़ लाइक अ गुड नीच जहाँ स्टार्ट कर सकते हैं. बट लोग स्टार्ट ही वेस्टर्नाइज चीज़ों से करते हैं, एंड देन इवेंचुअली दे अंडरस्टैंड के मैच्योर होते होते कि नहीं यार, अपने कल्चर में भी तो था, अपन ने इसको कभी ध्यान ही नहीं दिया. सो या आई थिंक प्रॉब्लम भी है कि वो अपने डिज़ाइन तो अपना काफ़ी अच्छा है इंडिया का, बट वो उसी डिज़ाइन में वेस्टर्न को मतलब मिक्स करना चाहते हैं. What do I feel like कि अभी अपने यहाँ this is 3D is really new, so not a lot of people know about it. और वेस्टर्न का अभी वेस्टर्न कल्चर ही इतना पॉपुलेटेड है या फिर ग्लोबलाइज्ड है कि उसी को अपन कंज्यूम भी कर रहे हैं और उसी को स्प्रेड भी कर रहे हैं. गोल्डन स्टैंडर्ड्स बना के रखा है उसे. या तो अभी अपने को पता ही नहीं है कि इंडिया का ट्रेंड क्या है या फिर इंडिया से क्या निकाले, मतलब इंडिया का आर्ट पीस कैसा होना चाहिए मेजरली. गोल्डन स्टैंडर्ड क्या होगा इंडिया का? एग्जैक्टली दैट Yeah, पीस जिसको देख के दुनिया सोचे कि What यार do we refer to like? मेरे को भी ये exactly. क्वेश्चन के आ रहे, मेरे को यही आया था कि मैं क्या बोलूं इसमें. व्हाट आर द डिजाइन ट्रेंड्स इन इंडिया? आई डोंट नो अबाउट दैट. मतलब मेरे को Yes. कोई नॉलेज ही नहीं है. I don't even know what is the trend of India. ट्रेंड ऑफ इंडिया. हाँ. यस. तो Guys, we can tap on this, like I think yeah, Yeah. this is a good point भाई. Wow. follow the hype. मुझे goosebumps आ गए. Yeah. बनाने पड़ेंगे भाई अब बनाने पड़ेंगे. Okay. भाई इंडिया को प्रमोट करते हैं, हो गया बहुत. अब बनाऊंगा मैं. मतलब बेसिकली कंपैरिजन किया जाए तो ये है कि बाहर अपन देखें तो थोड़ा सा मिनिमल और कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे वो लोग फोकस करते हैं. इंडिया में अपन बोल सकते हैं कि थोड़ा कल्चरल साइड लोग जो ध्यान दे रहे हैं, डिजाइन जैसे मंडाला एंड ऑल, है ना. Yeah. वैसा कुछ ट्रेंड रहता है इंडिया में ज़्यादा. हाँ. इवन एज अपन अलग आर्ट फॉर्म देखें, जैसे साड़ियाँ भी बनती हैं अपने यहाँ, फिर अलग अलग चीज़ें, उसमें हर जगह आप देखो कि वो कल्चर इम्पैक्ट रहता है. Patterns. Yeah. हाथी. फ्लावर्स, ये सब चीज़ें. फ्लोरल पैटर्न्स. इवन ट्रक के पीछे के साइंस फेमस होते हैं. माचिस के डिब्बों के ग्राफिक डिज़ाइन इज अ थिंग, वो सिर्फ इंडिया में ही है. एंड How can you forget the OG Amul? Like
अगर तुमने देखा होगा तो हर वीकेंड या फिर हर कोई भी अपना फेस्टिव आता है तो वो पेपर में एक आर्टिकल में उनका एक कटआउट रहता है जिसमें उनकी एक बंदी जो है ब्रांड एम्बेसडर एक लड़की है तो उसका कैरेक्टर रहता है एंड दे प्ले अराउंड विद इट सो डू लुक आउट फॉर दैट। हाँ, अभी मतलब एड्स भी आते हैं उसके यहाँ। कुछ भी ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है तो वो उसका एक आर्टवर्क बनाते हैं 2D पेंट वाला। जैसे कुछ चल रहा था एंड या बीच में। मैं ये भी बोल रहा था 3D इज वेरी न्यू इन द कंट्री, 2D वाला आर्टवर्क इज मोर पॉपुलर और मोर मतलब यूज्ड इन इंडिया। 3D को इतना ज़्यादा तवज्जो अगेन इम्पोर्टेंस नहीं है अभी फिलहाल के लिए। People आएगा don't धीरे even धीरे know धीरे about धीरे it. करके Yeah, ग्रोथ होगी it's उसकी। very new. अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर किए, फ्रॉम बिगेस्ट चैलेंज इन इंडिया टू व्हाट आर द ट्रेंडिंग टॉपिक्स इन इंडिया। और अगर आपके पास कोई अच्छा टॉपिक हो जिस पर आप चाहते हैं कि हम लोग बात करें, सो प्लीज़ कमेंट डाउन और DM अस। आप लोगों को पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ डू कमेंट। बाय बाय।